تو بس انسٹا بھی ایسے ہی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ مائک ان کو دیں. ہم نے آپ کو بریک میں بھی کافی پٹیاں پڑھا دی ہیں, تو شاید ان پٹیوں سے آپ کی زندگی بہتر ہو. یہی ہوتا ہے نا, ہماری کوئی خالائیں ہوتی ہیں پٹی پڑھاتی ہیں, تھوڑے دیر ہم سکون میں رہتے ہو, ایسے گزر. جی میرا نام اسما ہے. میری شادی کو 4 سال ہو گئے. اچھا. اور میری اولاد نہیں ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتی ہوں. قریب کے لوگ بہت پریشر دیتے ہیں, مطلب جہاں بھی جاؤ تو ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ اولاد نہیں. تو بہت مشکل ہے یہ چیز, لیکن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی نہیں ہونا تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے, لیکن لوگ نہیں سمجھتے. آپ پریشرائز ہو رہی ہیں نا بہت زیادہ. لیکن ہم ہر کسی کو ظاہر نہیں کر سکتے کہ ہمیں اندر سے کیا تکلیف ہے کیا نہیں. لوگ سمجھتے کہ نہیں یہ تو خوش ہے, اچھی پکچرز لگاتی ہے, یہ تو بہت خوش ہے. ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اندر سے انسان جتنی تکلیف میں ہوتا ہے وہ ہر کسی کو نہیں دکھا سکتا. میرے قریب کے لوگ مجھے بہت زیادہ, میرے بہت دوست ہیں اور سب ہے, ایک ہی سوال, کہیں شادی میں چلے جاؤ یا تو کسی کی میت میں چلے جاؤ. ایک ہی سوال, شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا. یہاں تک کہ بہن کی شادی ہوئی ہے تو اس کو بھی کہتے اچھا تمہاری بہن کی یہاں نہیں ہے, تو برا لگتا ہے کہ اچھا تو سوال ہی کرتے ہیں, باقی کوئی پریشر ڈالتا ہے آپ پہ کہ ظلم کرتا ہو آپ پہ, کچھ ایسا ہے کہ ظلم تو خیر نہیں, لیکن سوال سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے انسان کے لیے. ایک مجھے بات بتاؤ, باڈی شیمنگ کی بات کرتے ہیں نا, یہ بھی تو پرابلم ہے. ان کی بات سنی, آپ نے ان کی بات سنی, اب آپ کی باری آئی. ان سب کے گھر میں اولادیں ہیں صحیح, لیکن ان کے مسائل مختلف ہیں. کیا ان تینوں کے زندگی میں جو مسائل ہیں ان میں سے کوئی اولاد کے علاوہ کوئی اور مسائل ہیں آپ کی زندگی میں, ساس ہسبینڈ فلانا ڈھماکہ؟ نہیں, مجھے فیملی کی طرف سے اتنا زیادہ پریشر نہیں ہے. ہسبینڈ بھی ظاہر ہے ان کو بھی خواہش ہوگی, فیملی کو بھی ہے, لیکن وہ اتنا زیادہ ظاہر نہیں کرتے. لیکن باہر کے لوگ زیادہ ہمیں پریشان کر دیتے. باہر کے لوگ اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں تمہارے لیے؟ نہیں, لوگ بھی پریشان کیا کر رہے ہیں, صرف سوال لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اچانک سے آپ سے کوئی سوال کر لے تمہارے بچے نہیں ہیں, اچھا فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی, فلاں بندی سے علاج کروایا, یہ کروایا. دیکھو یہ پریشر کو نا, یہ تمہارے ہاتھ میں ہے, یہ پریشر کو کتنا بڑھانا ہے یا کتنا کم کرنا ہے. اس پرابلم کو بڑھا چڑھا کے اپنے اندر اپنے مائنڈ میں دینا ہے کہ یار اب سب مجھ سے, اور کیا کیا پرابلم بالکل اگنور کرو. کافی جگہوں پہ مجھے بس اولاد کا ہی تانا, مطلب یہی تانا ملنے کو ملتا ہے کہ بچے, اچھا تم تو ایک ہی بہو ہو نا, کیونکہ میں ایک لوتی ہوں تو مجھے یہی سوال, تم ایک ہی ہو, اچھا اب تک نہیں ہے, کیا ہو گیا, مطلب کہیں علاج نہیں کروایا. اور میرے اسٹارٹ میں کچھ ایشوز ہو گئے تھے, اچھا تم نے احتیاط نہیں کیا نا اس لیے یہ مسائل ہو گئے, اس وجہ سے اب نہیں ہو رہا. اچھا اب اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ, تم احتیاط نہیں کرتی تھی. یہ مطلب ہم, یہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں کیا مطلب فیل ہوتا ہے. ایک بات سنو, تم ان سارے لوگوں کی باتوں کو نیگیٹو لے رہی ہو, کیا پتہ کوئی تمہاری بھلائی کے لیے بھی بولتا ہو, جو تمہیں ظاہر ہے وہ چیز تمہارے ایک اورا بن گیا ہے نیگیٹو, جو تمہیں ہر کسی کی بات نیگیٹو لگتی ہوگی, تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں تانے دے رہے ہیں. کیا پتہ وہ تمہارے ہمدردی میں تم سے یہ بول رہے ہوں کہ ادھر چلی جاؤ یا ادھر چلی جاؤ. لائک میری امی خود ان نون لوگ ہوتے تھے, بہت اپنے نہیں ہوتے تھے, ان کو لے کے ہسپتالوں میں بھی گئی ہیں علاج کے لیے, ایک سوشل ورک کے ذریعے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی سمجھتا ہو کہ وہ ایسی ہے, پیار بھی کر رہے ہو, بٹ ندا اگر وہ کر بھی رہے ہیں, چلو وہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں, اولاد کرو اولاد کرو, اب اس کے اوپر ہے نا کہ یہ کتنا پریشر اپنے اندر لیتی ہے, اپنے آپ کو کتنا مضبوط رکھتی ہے. کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے, تو کچھ بھی نہیں ہے, 22 12 آپ کو کوئی اور پرابلم ہی نہیں ہے. آپ کا ہسبینڈ آپ کو نہیں چھوڑ رہا ہے اس بات پر, سب سے بڑی بات تو یہی ہے, ورنہ تو وہ الگ پرابلم ہے کہ ہونا چاہیے جو یہ ان کو خود کو فیل ہوتا ہے. نیلم, وہ اس دیکھیں اسٹریس جو ہے نا, اسٹریس اور پریشر ہم جتنا زیادہ لیں گے, ریسرچز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے کنسیو کرنے کے چانسز اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ حاوی کر لیا تو ویسے بھی آپ کا جو نیچرل پروسیس ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے, اور ظاہر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی رشتہ دیا ہے, یہ محبت کے طور پہ دیا ہے, اس کو انجوائے کرنا ہے یا پریشر کوکر پہ چڑھا کے رکھنا ہے, یہ آپ کی چوائس ہے. ابھی گولڈن ٹائم ہے, اگر ابھی 5ویں سال بچہ ہو گیا تو زندگی تبدیل ہو جائے. بالکل ہی تبدیل بھی. اب یہ بھی زیادہ ہوتا ہے کہ اچھا جاب کر رہی ہوں تو جاب کر رہی ہے تو اسی لیے بچہ نہیں کر رہی کہ شاید آزادی ختم ہو جائے گی. دیکھیں آپ کے گھر والے ٹھیک ہے اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے کریے, بہت اچھی بات ہے. دیکھیں کتنا وقت آپ کا گزرتا ہے ان باہر والے لوگوں کے ساتھ, اور کتنا وقت آپ کا گزرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور کتنا وقت آپ کا گزرتا ہے ان باہر والے لوگوں کے بارے میں سوچنے کے ساتھ.
ये आपने चूज़ करना है। अभी तो आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, लेकिन अगर आपका जहन वहीं पर है कि मैं जो वीकेंड पे वहाँ पर गई थी और खाला ने पूछ लिया, और आप खाना बना रही हैं तब भी हो रहा है, आप जॉब पे जा रही हैं तब भी यही आपके जहन में चल रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं ला रहा है। कोई मशवरा दे, कोई एडवाइस करे, उस पर अमल बिल्कुल आप करें, उसको पॉजिटिवली लें। देखिए, अब आई थिंक आज के शो के बाद आपने ये तो सीख लिया होगा कि औलाद की दुआ करनी है या सेहतमंद औलाद की दुआ करनी है, ये आपकी चॉइस है। और जाहिर है अल्लाह ताला ने किसी ना किसी चीज़ पे तो जो है वो हमें डिपेंडेंट रखना है। हम अल्लाह ताला को याद ही अनफॉर्चुनेटली तब करते हैं। वो तो कुरान में कहते हैं, वो कह रहे हैं ना, मैं तुम्हें आजमाऊंगा। ऐसा ही है, ऐसा औलाद ही है। दे के भी आजमाऊंगा, लेके भी आजमाऊंगा, पैसा दे के भी आजमाऊंगा, पैसा लेके भी आजमाऊंगा, तो कह रहे हैं। लेकिन ये आप कितना वक्त गुजार रही हैं लोगों के बारे में सोचने के लिए। आपकी एक हो जाएगी, उसमें गैप आ जाएगा तो लोगों ने फिर से बोलना शुरू करना है, क्योंकि उनको जो नज़र आ रहा है उन्होंने तो उसी पे बात करनी है। अगर घर बड़ा है, घर छोटा है, यहाँ नहीं गए। हमारे फारिग लोग भी बहुत, ऐसा ही है, ऐसा ही फारिग लोग इतने हैं जो ज़्यादातर मशवरे देते हैं कुछ, तो उनको खुद को भी सोचना चाहिए ना कि हम खुद भी कोशिश वही कर मैं कह रहे रही हैं ना, हमारे पास फारिग लोग बहुत हैं। इसलिए तो ARY ने इतने ड्रामे चला दिए कि 7-7 दिन ड्रामे ही चलते रहते हैं ताकि उनकी ये सब चीजें कम हो। वरना आपको याद है PTV के जमाने में कोई 1, 2, 3 ड्रामे हुआ करते थे। अब तो बहन 7 बजे से ड्रामे शुरू होते हैं तो ARY कहते हैं चलाते जाओ ड्रामे। चलाते जाओ, इनमें वाले हैं। हाँ, तो वो हमारे पास बहुत फारिग लोग हैं और उन्होंने अपनी फरागत का कोई ना कोई मशगला चुना हुआ है दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने का। सो हम चाहे कितना भी कुछ कहेंगे, वो अपनी आदत और उनकी फितरत से वो नहीं रुकेंगे। मगर तुम जॉब कर रही हो, तुम अपना टाइम इतनी जगह बांट दिया है, तो तुम क्यों सुनती हो उनको? 2 कान अल्लाह मियां ने किस लिए दिए हैं? नहीं, मेरे ना कान के बीच में जो दिमाग है उसमें सब रह जाते हैं, फिर मैं वही चीजें भाई सोचती हूँ। काउंसलिंग बिल्कुल आप आ जाए हमारे पास कि उसको निकालना कैसे वो भी सिखा देंगे। और मुझे बताइए, नहीं नहीं काउंसलिंग मैं तो मस्ती कर रही हूँ। मैंने कहा भाई अब तुमने समझ लिया कि नहीं, मेरे शोहर भी यही कहते हैं कि तुम पागल ही हो जाओगी इस तरह। अगर नहीं, देखिए स्ट्रेस और प्रेशर हम लेंगे, और मुझे पता है कि जो हमारा एक सेंसिटिव एरिया होता है, कोई बार बार उसको कुरेदता है तो तकलीफ तो होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन आप ये देखें, किसी ने, आप किसी शादी पे गई, किसी आंटी ने आपको कह दिया और आप अगले 4 दिन उसके बारे में सोच रही हैं। वो आंटी कहकर कितनी देर सोची होंगी आपके बारे में? वो 2 सेकंड, 30 सेकंड, वो भूल गई। 30 दिन तक आपको उनकी बात याद है। नुकसान किसका हो रहा है? आपका, उनका? गोल्डन पीरियड जाया नहीं करो, बता रही हूँ। बच्चों के बाद बस उनकी लंगोटों में ही लग जाओगी। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बिल्कुल आसानी करेंगे, लेकिन ऐसा ही है। लेकिन प्रेशर लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। यही तो समझा दे, अगर हमारे कंट्रोल आप सबको समझाने जाएंगी तो ये आपके कंट्रोल में भी नहीं। पहले तो रिलैक्स करोगी तो कंसीव कर पाओगी। रिलैक्स ही नहीं होगी तो फिर तो तुम्हारा ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए चिल, रिलैक्स बहुत आसान है मुंह से कहना जो मैं कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें अगर अपनी जिंदगी आसान बनानी है तो जो हम कह रहे हैं उसको जज्ब करो। नहीं, को बहुत कोशिश करती हूँ कि इन सब बातों से दूर हट जाऊँ, लेकिन जैसे कि शादियों में और जाना है, अब ज़ाहिर बहन की शादी है तो उधर भी जाना ज़रूरी होता है। तो इतनी सारी महफिल लगी हुई होती है, डायरेक्ट सवाल कर लेते, बहन की नई नई शादी, तो मुझसे पूछेंगे तुम्हारी बहन के यहाँ कुछ है? अच्छा, कुछ हुआ? नहीं हुआ? तो मैं कहती हूँ नहीं। अच्छा, तुम्हारा कुछ हुआ? नहीं हुआ? कहती हूँ नहीं। तो मतलब अक्सर लोगों को सब पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार एक ही बात करना और ताने दे देना, इसके यहाँ तो बच्चे नहीं हैं, ये तो खुद नहीं चाहती है, इसका तो खुद का ही दिल नहीं है, ये कैद हो जाएगी, इसकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए बच्चा नहीं करे। तो हम अगर ऐसी आज़ादी चाहिए तो इतने साल हम क्यों ज़ाया करें? शादी से पहले ही सारी आज़ादी वाली ज़िंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन लोग इस चीज़ में इतना परेशान करते हैं कि मुझे डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। मैं अंदर ही अंदर, मैं पहले ज़्यादातर अपने शोहर को बोलती थी कि ये मसला है, वो मसला, अब मैं उनको भी नहीं बोलती, क्योंकि मुझे खुद को भी एहसास होता है, वो भी मेरी वजह से परेशान होते हैं। ज़ाहिर रोज़ एक ही बात उनके आगे बैठ के रोऊंगी करूँगी, तो फिर मैं उनको भी अब नहीं बोलती। लेकिन मेरे अंदर तो वो चीज़ अब भी है, और मेरे शोहर भी ऐसे हैं कि वो खुद भी जाहिर नहीं करते, जबकि उनको भी ज़ाहिर औलाद की ख्वाहिश किससे नहीं होती, सबको होती है। वो खुद भी जाहिर नहीं करते कि मैं परेशान हो जाऊँगी। लेकिन और तुम लोगों ने अभी कोई अपना मेडिकल चेकअप वगैरह नहीं करा? नहीं करवाया है, काफ़ी हद तक सब नॉर्मल है, लेकिन फिर वही अल्लाह की मर्जी है। बस सब नॉर्मल है तो टेंशन की क्या बात है? तो मैं कहती हूँ मुझे ज़्यादा टेंशन होता है, कोई बीमारी हो तो बंदा इलाज करवा। हमारी एक फ्रेंड है, अभी 12 साल बाद शादी की, उसका माशाल्लाह बेटी हुई है, सेहतमंद बेटी है, तो बस उसका देर है, देर नहीं है। अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह दुआओं में बहुत ज़्यादा, लाइक वो कहते हैं ना, दवा में शिफा तो है,
लेकिन दुआओं से बढ़कर दुआ कोई तो और चीज़ किस्मत बदल देती है। किस्मत बदल देती है। बेशक अल्लाह पाक मुझे औलाद दे दे इलाही आमीन। देखो अभी कितने सारे लोग देख रहे हैं, किसी ना सबने किसी की दुआ आमीन ले कहा रहे होगा। हैं। ये कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना आप वो सोचें जो आप चाहते हैं, तो ऐसे इमेजिन करो जैसे बेबी हाथ में है, अच्छा फिर ये मेरे हालात भी ऐसे चेंज होंगे, ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग करो, अपने माइंड को लेकर जाओ, क्या पता कि ये चीज़ वर्क कर जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपके जो गुमान हैं वो आपके पूरे हो जाएं। अभी तक आपके गुमान में ये चल रहा है कि औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, लोग अब ये है, बोलते रहते हैं, को वो सोचना बोलते हैं। शुरू करो। अब है, इंशाल्लाह आ हो गई जाए। है, हो नाम सोच लो। जाएगी। हो गई। अगर हो जाएगी पे रहोगी ना तो भूल जाओ, नहीं को हटा दो। हो गई है, नाम सोचो, लड़की हम होगी, सब अच्छा बन गए लड़की है तो ये psychologist। हाँ नहीं इट रियली इतनी तो बिल्कुल आपको प्लानिंग मदद करके मिलती रखी है। है। ऊपर से कपड़े वगैरह भी मतलब कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो लेकर रख देती हूँ। मेरे शोर तो मना करते हैं ये सब चीज़ें नहीं करा करो, इस वजह से और ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में ये बात रहेंगी, लेकिन मुझे फिर भी खुशी होती सही है ना, उम्मीद है ना, मैं उम्मीद अपनी तो माइंड में हाँ, जब जाती हूँ वहाँ पे जमा कर कर आ जाती हूँ। मैं इनको घर पर नहीं बताती कि मैंने ये लिया है, तो एक है कि बस अल्लाह पाक दे दे इंशाल्लाह। और जो सवाल करे बोलो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। अच्छा नहीं लगे, जैसे कि ऐसे ही बोल दो बस। ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं अच्छा लगता है कुछ है ना बता नहीं रही। हाँ अच्छा तो पता है उनके गुमान आप भी अगर बदलेंगे। मजे में और हंसी में लेना शुरू करोगी तो शायद आपको ये बातें नहीं बुरी लगना खत्म हो खत्म हो जाए। मैं कोशिश चटखारे में बोलो जवाब आने दो। वाला है, बहुत अगर कोई जल्द। कहे क्या बच्चा नहीं करे मैं, तो उनको जवाब दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो ताना है, उनको बोलो नहीं हम एंजॉय करें अपनी लाइफ। क्यों आपको कोई प्रॉब्लम है? जो तो वो ताने कहते हैं, लेने हाँ, वाले ना जानबूझ के उनके तुम साथ कर तो रहे ऐसे ही हो। चलना चाहिए। फिर वो सामने से कहते हैं हाँ सही है तुम आज़ादी के चक्कर में रहते हो। तो मतलब उनको क्या तकलीफ है भाई? पता है क्या, अगले का गुमान भी उस तरफ ले आओ जो तुम चाहती हो, उसको बोलो हाँ आने वाला है, बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगी। थोड़ा सा बोल दो झूठी सही। तंग ना आप क्या बताना